अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि घर में डकैती की वारदात सिर्फ डाकू ही नहीं करते हैं, वहां पे काम करने वाली घरेलू मुलाजमा भी डकैत गैंग की रुकन हो सकती है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना नश्तर कॉलोनी ने एक डकैत गैंग पकड़ा है जिसके 8 रुकन हैं, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। 6 मर्द हजरात हैं जो खवातीन घरों में काम करती थी और इनको इतला देती थी कि घर में बहुत पैसा है, जेवरात हैं और भी गैर मुल्की करेंसी भी है। डकैती की वारदात इन्होंने किस तरह से की, क्या रिश्तेदारी है इनकी खवातीन के साथ और सब प्लानिंग क्या हुई, सब कुछ आपको मुलजमान की ज़ुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है भी तुम्हारा? जी मोहम्मद जफर। जफर, किस तरह की वारदात की करना काम? मैं जी ड्राइवरी करना। कित्थे? सूई गैस से पहले करता ਸੀ, ਹੁਣ मैं ਛੱਡ ਗਿਆ। अच्छा, ਹੁਣ ਛੱਡ गया। हाँ जी, हमशीरा मेरी जिस घर डकैती हुई उस घर काम करते सी। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਰੇ ਖੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਪਤੰਦਾ ਜੀ। ਪਾਕ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਨ ਤਲਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ- ਤਲਕ? ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ? ਬੀਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ 10 ਆਦਮੀ। ਸਾਲ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਫੀਆ ਜੀ। ਸਫੀਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਫੀਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੋਟਲ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਪਾਈਏ, ਕਲੇਮ ਪਾਈਏ? ਬਈ ਐਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਫਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਹਮ ਕਿਹਾ- ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਇਹਨੇ ਅਗਾ ਬੰਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਵੇਂ? ਬੰਦੇ 6 ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ? ਬੰਦੇ ਇਹ 3 ਸੀ ਜੀ। 3 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੌਥਾ ਮੈਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। 6ਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਛੇਵਾਂ ਇਹ 6 ਸੀ। 6 ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਨੇ, ਮੁਖਬਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਕੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਡਕੈਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਅਸਲਾ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਇਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ? ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 3,35,000 ਕਿ 40,000 ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੁਐਲਰੀ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 20 ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਗਏ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਆਏ। ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਫੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੁਐਲਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਲਰ $5 ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 5 ਸ਼ਾਹਿਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 63,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 63,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ? 63,000 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ? ਵਾਪਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੈ। ਕੋਲ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਢ ਵੀ- 2 ਸਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਦੀ ਲਓ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਜ਼ਫਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਡੋਗਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 2000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਤੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਸੀ 10,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨੁਕਰਾਨੀ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 302 ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਗਵਾਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰਚਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸਰ, ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹਾਂ। ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, Artificial ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ FAR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਨੋਟ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਨ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਗੈਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕੀ ਕਰੰਸੀ ਅਸਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਚਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹੋ? ਖੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। ਹੈ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੈ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਆਪ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਏ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦੀ ਬੁੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੁਕਬਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲ ਆ ਚਲੀ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਦੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਾ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? 1,26,000। 1,26,000 ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ? ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਥੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ। 10 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मोहम्मद नुमान जी। ਹੈ मोहम्मद ਤੂੰ नुमान ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? पाक पतंद जी। ਪਾਕ ਬਦਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਪਿਸਟਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿਸਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਸਟਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਲਏ? ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਬਸ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੈਗ ਗੱਲ। ਡਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਡਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਸਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੈਗ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁਝ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ?
ਰੋਡ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਬਾਈ ਵੀਲਰ ਗੈਸ ਲਬੋਜ਼ਰ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। एक भी गोली नहीं देती? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद जी। शाहिद जी शाहिद है तू जफर दी भैन दा खावंद है? नहीं जी, मेरा ताल्लुक सी 7-8 साल तो की ताल्लुक सी वैसे सी जी। हैं? ऊंची वैसे बोलना। सी, वैसे की बस जी किमें ताल्लुक होंदा है मियाँ बीवी दा उस तरह सी। मियां बीवी दा जिवें ताल्लुक हाँ होंदा जी। है, तो शादी क्यों नहीं कर लेंदा सन? बस जी उन्हें अगू तलाक नहीं लई, मैं उन्हें बड़ी दफ़ा कहा सी पर अगू तलाक नहीं लै रही। अच्छा, वो पहले शादीशुदा है? हाँ जी सर। अच्छा, तो ओदे अपना बच्चे भी ने? जी सर। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? हाँ जी उन्हें खामन नु जानना वा। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ नहीं जी ਹੈਗਾ? उन्हें नहीं पता हैगा। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਉਹ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ CIA ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਅ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਈਪ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ? ਵਾਕਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਤੇਰੀ? ਵਾਕਫ ਜੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਮਾਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਸਾਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਤਲਕ ਬਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜੀ ਸੋਨਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਫੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਫੀਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛਾ। ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੇ plan ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਣਿਆ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਫੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਮਿਲਾ ਸੀ 63,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਨੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰ ਹੈਂ? ਸਜਾਦ ਅਲੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ? ਤੇਰੀ ਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ duty ਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਅੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ? ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਠਾਲ ਤੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਪਾਕ ਪਤਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ਫਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਪਾਕ ਪਤਨੀ ਜੀ। ਪਾਕ ਪਤਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? 1 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ? ਮੰਗੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ? 1 ਰੁਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਨ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। 7-8 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਿਰਫ 5000 ਵਾਲੇ ਤੇ 1000 ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ। ਅਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਿਰਫ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। 3 ਪਿਸਤੌਲ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਮਾਨ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੁਮਾਨ ਕੋਲ ਲਿਆ? ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਵੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲੀ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲੀ ਫੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 24 ਕੁ ਸਾਲ। 24 ਕੁ ਸਾਲ? ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਫੀ। ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਨਾ? ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਫੜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਲ ਚੌਂਕ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਮਾਲ ਚੌਂਕ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। पकड़ा गया। डकैत गैंग में गिरफ्तार होने वाली जो 2 खवातीन हैं उन्हें भी पुलिस की हिरासत में हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने डकैती की वारदात की। तुम नाम बताओ अपना। सफ़िया। सफ़िया नाम है तुम्हारा, ऊंची बोलो। हाँ जी। अच्छा, तुम कहाँ पे काम करती थी? ठीक है। किधर घर काम करनी से? अली शफा। अली शफाक दे घर। ते किस तरह डकैती की वारदात करने वास्ते प्लान बनाया बस दिन शैतानियां आ गई। हैं? दिन शैतानियां आ गई। जेन शैतानी आ गई तो फिर किनू दसिया तू सब तो पहले? अपने भाई ने। की नाम है ਉਹਦਾ? जफर। ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? हाँ ਕੀ जी। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ? कि भाईजान सदका खरात कट देन ते ਆਪਾਂ चोरी कर ली। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ? ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਆਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਲੁੱਟਿਆ? ਜੁਐਲਰੀ ਸੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ? ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਲ? ਕੰਮ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ 25000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 25000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਚੰਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਨ। ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ? 3। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ? 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ। ਹੂੰ। ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ- ਮਰਿੰਦਾ ਕੁਟਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ? ਤਦ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ। ਹੈ? ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ? ਜ਼ਫਰ ਦੀ। ਜ਼ਫਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜ਼ਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ? ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦਾ? ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ करता तू भी ਸੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? नहीं, मैं कपड़े सिलाई करनी। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे रिजवान साहब हैं जिन्होंने इस पूरे गैंग को गिरफ़्तार किया और पाकपतन से जाकर इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई। रिजवान साहब, ये जो सफ़िया नामी खातून है, असल तो प्लान इसका था क्योंकि ये 6-7 साल से उनके घर पे काम करती थी, तो क्या इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज़ सामने आई कि आपको शुबा हुआ और बाकी मुलजमान पकड़े गए? ज़ाहिर है ये घरेलू मुलाजमत थी और बाएतमाद थी मुकदमा मुदई की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस दिन उनके घर वारदात हुई है, ये रूटीन में उनके घर जाती रही है ताकि मुझ पे कोई डाउट ना हो। ठीक है। लेकिन जुर्म की एक ना डेफिनेशन है कि मुलजमान जितने मर्दी चालाक हों, शातिर हों, जुर्म अपना निशान कहीं ना कहीं पे छोड़ जाता है। ठीक है। जब हमने मौका वारदात का विज़िट किया, जब हमने इनसे मुलजमान की उनसे डिटेल ली, इनको हमने इंटरोगेट किया, बेसिक इनसे पूछताछ की, तो इसने वहाँ पे ना बैंड डालने शुरू कर दिए, रोना धोना शुरू कर दिया। नुकसान तो जाहिर सी बात उनका भी हुआ था, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि उनसे ज़्यादा ये इतनी पेन हमें फ़ील कैसे करवा रही है। हमें उस वक्त इस पर डाउट एक तो हुआ, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, पहले हम अपना मज़ीद काम इंटरोगेशन कर लें, जब हमारे पास अथेंटिक कोई आ जाएगी प्रूफ, फिर हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर हमने CCTV फुटेज से मदद दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जहाँ से हमें CCTV फुटेज से मदद मिल गई कि हमने
कि इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस घर में इंटर हो रहे हैं। फिर सबसे पहले हमने उस घर में रेड किया। वो घर जो शाहिद लुकमान जो इसके साथ रह रहा था, ये खालाजाद कज़न अपना बताती है, उसके बहनोई और सिस्टर का घर था, ठीक है, जो सितारा कॉलोनी फैक्ट्री के इलाके में। ठीक है। वहाँ से हमने उनको पकड़ा। फिर उन्होंने हमें बताया कि ये शाहिद लुकमान और सफ़िया बीबी जो कमाहा में रहते हैं रेंट के फ्लैट में, ठीक है। वहाँ रेड करके हमने फिर सफ़िया को और शाहिद को गिरफ़्तार किया। और इनको जब हमने इंटरोगेट किया, फिर इन्होंने बताया कि बाकी जो मुलज़मान हैं इनके साथ वो पाकपतन शरीफ के हैं। बेसिकली ये भी पाकपतन शरीफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं पीछे। तो फिर हमने फौरी तौर पे रेडिंग पार्टी तश्कील दी, नफरी ली मैंने साथ। तो इसमें हमारे सीनियर्स ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। जो हमें चीज़ें दरकार थी रेड के लिए, जो सोर्स थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। तमाम मुलज़मान जो इसमें इन्वॉल्व थे वो तमाम के तमाम हमने अरेस्ट कर लिए। थाना नश्तर की हदूद में जो हाउस रॉबरी होती है उसके मुलजमान नश्तर कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए हैं, लेकिन मुकदमे के मुद्दई अली इशफाक हमारे साथ हैं। किस तरह से डकैती की वारदात होती है, घरेलू मुलाजमा उस गैंग का रुकन होती है, ये कुछ तफसील जानने की इनसे कोशिश करेंगे। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ ईसा, आपके घर में डकैती की वारदात हुई जी। कैसे हुई वारदात, घर में कौन कौन था और कौन लोग मुलविस निकले? सर ये 10 जनवरी की सुबह हमारे घर में तकरीबन 7:15-7:20 के करीब 3 लोग दीवार फलान के, जी बिल्कुल सुबह, उस दिन फॉग भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह 7:15 बजे जैसे ही मेरी वाइफ बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए निकली हैं, तो वो निकले हैं तो ये लोग दीवार फैलान के अंदर आ गए हैं 3 बंदे, और ये किचन के दरवाजे से घर में एंटर हुए। मैं सोया हुआ था उस टाइम। आई वोक अप, मुझे रोने की आवाज़ आई एंड आई वोक अप। तो मैं उठा तो सामने मेरे 3 बंदे असले के साथ खड़े हैं और मेरी मेड साथ खड़ी हुई रो रही, क्योंकि उसको लेके मेरे रूम में ये लोग आए थे। उसके बाद सर ये लोग मुझे उठाया, इन्होंने मुझे सारा एक दफ़ा पूछा कि बाजी किधर हैं, ऊपर कौन कौन है। ऊपर मेरी बेटी थी, एक और मेड थी। उसके बाद ये लोग मुझे बाहर लेके गए हैं और मुझसे पूछते रहे तिजोरी किधर है। फिर ये लोग मेरे साथ, मैंने उनको बताया जैसे अंदर रूम में है। फिर ये लोग अंदर रूम में मेरे साथ आए हैं। हम लोग जहाँ मेरी कैबिनेट्स हैं हम लोग वहाँ गए हैं। इन लोगों ने मुझसे सारा खुलवाया है गन पॉइंट पे, और मैंने इनको सारा कुछ निकाल के दिया, इन्होंने बैग में भरा। उसके बाद फिर ये लोग मुझे बाहर लेके गए हैं कि गाड़ियों की चाबियाँ मुझसे इन्होंने लेनी थी। सारी गाड़ियों की चाबियाँ इन्होंने अपने पास रख ली थी। उसके बाद हमें इन्होंने अंदर रूम में लॉक कर दिया। मेरी दोनों मेड्स, मेरी बेटी, मैं, हम लोग रूम में लॉक थे। उसके बाद सर इनका एग्ज़िट प्लान ही था, ये लोग निकलने ही वाले थे कि उसी टाइम पे मेरी वाइफ और ड्राइवर बेटे को छोड़ के वापस आए। एक बंदा बाहर गाड़ी निकाल रहा था उस टाइम। तो जैसे ही वो लोग आए हैं, इन्होंने दोनों बंदे बाहर भागे। इन्होंने गन पॉइंट पे उनको भी रूम में लेके आए हैं। रूम में हम सबको लॉक किए, हमें काफ़ी धमकियां देते रहे, डराते रहे हैं कि आप लोग अगर पुलिस के पास जाएंगे, या इवन हमने सोसाइटी के भी गार्ड्स को बताया तो ये लोग हम सारों को मार देंगे। तो इन्होंने फिर हमें लॉक किया अंदर, रूम लॉक किया, और ये लोग एग्ज़िट इन्होंने ले लिया। उसके बाद सर फिर 2-4 मिनट जिस तरह एक बंदा रिवाइव हो रहा होता है, मुझे वो लगे हैं। उसके बाद मैं बाहर भागा हूँ और मैंने फ़ौरन जाके साथ वाले गार्ड को बुलाया है। उसने फिर गेट पे कॉल की है, सिक्योरिटी आ गई है। फिर मैंने 15 पे कॉल कर दी। ये सारा मामला फिर पुलिस सारा इसको देखना शुरू हो गई। एसपी मॉडल टाउन जो हमारे हैं हसन साहब, वो भी स्पेशली मेरे घर आए और उन्होंने ही फिर पूरी एक टीम तश्कील दी कि इस पे फॉलोअप्स भी वो मेरे साथ, मेरे एवरी डे वी वर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है। और उसके बाद जी इन्होंने फाइनली परसों रात को इन्होंने सारे मुल्ज़िमों को पकड़ लिया। तो फिर हमें भी ये पता चला कि हमारी एक मेड थी जो 6 साल से हमारे साथ थी, वो इन्वॉल्व थी, मास्टरमाइंड वो थी। उसने सारे अपने भाई को, जो भी उसके इलाके के लोग थे, सबको मिला के 8 बंदों का गैंग था ये, उन्होंने ये सारी वारदात की। तो परसों रात को टीम ने उन 8 के 8 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। अली साहब, होता ये है कि जब इस तरह की डकैती की या हाउस रॉबरी होती है तो उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है, घर का फ़र्द या भेदी जिसको कहा जाता है, कोई मुलाजिम होता है।
आपके केस में भी, आपकी रॉबरी में भी यही हुआ जो आपके साथ वाक़या पेश आया। घर में 6 साल से मुलाजमा है और यकीनन किसी को सोचा भी नहीं जा सकता कि इतने सालों से आप उसको सैलरी भी दे रहे थे और उसके बच्चों की तालीम का ख़र्चा भी आप बर्दाश्त कर रहे थे। क्या करना चाहिए आम आदमी को अगर घर में मुलाजमा रखे, मुलाजिम रखे, तो इतना बेखबर होना चाहिए? बेखबर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एडवाइस करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये मेरे साथ हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। तो आप लोग जब भी कोई भी बंदा मुलाजिम रखे, क्योंकि रखने होते हैं लोगों ने, जब भी कोई मुलाजमा रखें उनकी पुलिस से तस्दीक ज़रूर कराएं, उनका बैकग्राउंड ज़रूर चेक हो, ताकि आपको पता चल जाए कोई रेड फ्लैग तो नहीं इसके अगेंस्ट रेज हुआ हुआ, वो पहले से किसी चीज़ में शामिल तो नहीं थी। तो दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू कि हम इसका बैकग्राउंड चेक एक दफ़ा कर लें। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड, जितना मर्ज़ी पुराना बंदा है, बेशक उसको 50 साल आपके साथ हो गए हैं, बचपन से वो आपके साथ है, आप अपना घर पक्का रखें। इतना भी ट्रस्ट मत कर लें कि वो आपको ही नुकसान दे। तो अपना घर, अपने दरवाजे आप लोगों ने बंद करने हैं, फिर देखें बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अच्छा अली साहब, जो आपकी मेड थी, जो घर की मुलाजमा थी, कभी आपको उस पर शक नहीं हुआ उसके कुछ गुफ्तगू से कि उसका कुछ फैमिली बैकग्राउंड, या उसको एक आपको पता होगा कि उसने अपने भाई को सबसे पहले इन्वॉल्व किया, जो ज़फ़र उसका नाम है, तो उसने फिर सारा प्लान किया, तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ? और दूसरी बात यह कि शायद उसकी अपने खावंद के साथ अलहदगी हो चुकी हुई है, डाइवोर्स थी और उसका एक ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक़ भी था जो नाजायज़ ताल्लुक़ था, तो कभी आपको शुबा, कभी शक? नहीं सर, हमें इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि उसके किसी के साथ कोई ताल्लुकात हैं या नहीं हैं। हमें ये बस इल्म था कि वो डाइवोर्स्ड है और उसके 3 बच्चे हैं और वो हकदार है, बस। इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं था। ना कभी उसकी बातों से हमें कोई इस तरह की फीलिंग आई कि जी इस पे कोई शक करना चाहिए या कोई रेड फ्लैग रेज हो, कभी भी नहीं। SHO नश्तर कानूनी इकराम गुजर साहब हमारे साथ हैं जी। बहुत बड़ा गैंग जो डकैती की वारदातें करता था, जिस गैंग में ख़वातीन भी शामिल थी, उन मुल्ज़मान को पुलिस ने, ऑपरेशन विंग ने गिरफ़्तार कर लिया है। डकैती की एक बड़ी वारदात हुई, तकरीबन 70 लाख रुपए की डकैती की वारदात होती है सुई गैस सोसाइटी में। उन मुल्ज़मान को तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया। अकराम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकराम साहब, बताइएगा कि किस तरह से 8 रुकनी गैंग जो है वो गिरफ़्तार हुआ, इनकी डकैती की वारदात किस तरह से हुई, ट्रेस कैसे किया गया? सर, ये असल में ऑर्गेनाइज गैंग है। इसका काम ये है कि उनमें से एक आध या 2 जो मेंबरान हैं वो बतौर घरेलू मुलाजम लोगों के घरों में मुलाजमत अख्तियार करते हैं, फिर बाद में उसी घर की रैकी करते हैं। तो देखते हैं ज़ाहिर है पोश इलाकों में, जैसे DHO है हमारे पास, सुई गैस सोसाइटी है जहाँ पे ये वारदात हुई है, फिर उस घर की रैकी करते हैं। फिर अपने जो पीछे जो बाकी लोग हैं उनसे रब्ता करते हैं, वो आके फिर दोबारा घर का सारा चेक करते हैं, बायोडाटा, मतलब एंट्री एग्ज़िट कहाँ पे है, फिर आके वो वारदात करते हैं। ठीक है। 10 तारीख को ये वारदात हुई है सुबह के टाइम पे, तकरीबन 7 बजे हमें ये वारदात मसूल हुई कि घर के अंदर वारदात हो गई। क्योंकि हाउस रॉबरी जब भी होती है ये तकरीबन पुलिस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी होती है, परेशान कुन भी होती है। तो फिर मौका पे हम लोग पहुँचे हैं, हमारे तमाम सीनियर अफसरान पहुँचे हैं, DSP साहब भी हैं, SP साहब भी हैं। तो SP साहब ने फिर मौका के ऊपर ही इसमें ना एक टीम थाना से और एक टीम SP ऑफिस से, जो हमारी टेक्निकल डाटा के सपोर्ट के लिए, तो उन्होंने 2 टीमों को कंबाइन करके एक टीम बना दी। ठीक है, आपका ये काम है कि अभी आपने इस हाउस रॉबरी को ट्रेस करना है, तो उसके बाद ही वापस आना है। ठीक है। टीमों ने अपना काम शुरू किया, मुल्ज़मान के आने जाने के रास्ते चेक करने शुरू किए, CCTV कैमरे चेक किए, इवन सेफ सिटी भी चेक किया। इस मामले में सेफ सिटी से ज़्यादा हेल्प हमें नहीं मिल सकी, लेकिन लोकल जो कैमरा हैं उसमें डाकुओं का आना जाना हमने देख लिया। ठीक है। ये चेक कर लिया कि वारदात के बाद उन्होंने कहाँ कहाँ स्टे किया है, कहाँ उनकी मूवमेंट है। फिर आखिर में एक ट्रेस हो गया जहाँ पे हमें डाउट था कि इन्होंने जाके वहाँ पे आधा घंटा या घंटा स्टे किया है।
वहाँ से हमें फिर क्लू मिला है, तो पहला बंदा पकड़ा है, फिर उससे आगे फिर दूसरा, फिर जो बाकी इनकी चेन है ये सारी पाकपतन से है। ठीक है। बेसिक जो वारदात की जो मेन मैं समझता हूँ कल्प्रेट है वो है जो घरेलू मुलाजमा है। अच्छा। सफ़िया बीबी। सफ़िया बीबी वो एज घरेलू मुलाजम उसने 5-6 साल से उनके पास मुलाजमा है, उनका एतमाद भी बाहर रखा है उसने। और जब हम मौका पे गए हैं तो हमने उनसे पूछा है कि जैसे पुलिस का सस्ती क्वेश्चनिंग पुलिस करती है, तो हमने उनसे जो घर वाले हैं जिनके साथ हुई है वारदात, तो वो भी इस बात पे नहीं आ रहे थे कि वो कहते नहीं हमारे उनको एतमाद इतना था कि शक नहीं कर रहे थे मुलाजमा पे। जी बहुत ज़्यादा अपने एतमाद में, इवन कि उन्होंने हमें भी मना किया कि आप जो है ना हमारे मुलाजमान से टीजिंग क्वेश्चन ना करें। ठीक है। तो हमने भी अपने एहतियात, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा क्लू भी नहीं था। तो इस तरह से एक बंदे के साथ वारदात हुई, फिर उससे हम मज़ीद उसके सवाल जवाब से उसको इरिटेट ना करें। हमारे अफसरान का भी यही था, हमारा अपना भी इसमें ख्याल था। लेकिन बाद जब चीज़ें सामने आई हैं, ये सारा गैंग ये पकड़ा गया है, तो इसकी जो मेन एक्यूज़ है वो ये है जो इनकी घरेलू मुलाजमा है, सफ़िया बीबी। ठीक है। वो घर में घरेलू मुलाजमा थी। इसकी चेन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सफ़िया बीबी ने अपने भाई ज़फ़र इकबाल से रब्ता किया कि मैं जिस घर में काम कर रही हूँ ये अच्छे मतलब खाते पीते लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, पैसा है, जेवर है, खुशहाल है, तो इनके घर से हमें नकदी जेवरात वगैरह या मतलब जैसे गाड़ी भी छीन ली, ठीक है, ये चीज़ें मिल सकती हैं। ज़फ़र इकबाल ने फिर उसके बाद आगे एक रब्ता किया, उसका नाम भी ज़फ़र है, लेकिन वो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, वो कई मुकदमात में उकाड़ा पाकपतन में ठीक है चलान हो चुका है, जेल में रह चुका है। उस ज़फ़र और ज़फ़री से रब्ता किया। ज़फ़र ने अपना एक साथी जो उसका जेल का साथी था, पहले कहीं ये लोग जेल में रहे हैं, अली अहमद नामी उसका साथी, उससे रब्ता किया, उसको साथ में लाया। एक लड़का इन्होंने और साजिद नाम का था, वो पाकपतन से, वो भी इनका दोस्त होगा, कोई मुश्तरका दोस्त, उसको इकट्ठा किया और ये तमाम गैंग मिल के आ गया और इन्होंने सफ़िया बीबी के घर में 1-2 दिन रिहाइश भी रखी। इन्होंने पहले जाके तो उसकी रैकी की है घर की, ठीक है, घर की रैकी की है कि हम कहाँ से एंटर हो सकते हैं, कहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेन रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। सुई गैस सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस है वो नहीं इस्तेमाल की, बल्कि उसकी जो रियल साइड से, अकबी साइड से जो दीवारें वगैरह जैसे सोसाइटियों का होता है, अभी 4 दीवारी उस तरह से मुकम्मल नहीं, तो उन्होंने वो दीवार जो है ना क्रॉस करके तो ये आए हैं। और एक दिन पहले इन्होंने रैकी की है, 2 दिन पहले, और ये जिस दिन इन्होंने वारदात की 10 तारीख को, 9 तारीख को भी ये उसी टाइम पे वारदात के लिए घर में एंटर हुए हैं, लेकिन वो वारदात नहीं कर सके, धुंध थी या इस तरह करके ना, या इन्हें कुछ जो चीज़ें मामला समझ में नहीं आए, ये वापस चले गए हैं। ठीक है। 10 को ये दोबारा फिर आए हैं तकरीबन 7-7:15 बजे। अली इशफाक साहब जो हमारे मुदई हैं, उस वक्त ये घर में अकेले थे। इनकी वाइफ जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई, सबसे पहले इन्होंने अली साहब को ले लिया गन पॉइंट पे। फिर आप देखें कि भी इनका ऑर्गेनाइज होने का जो मैंने रिक्वेस्ट की, वो अपने इस लिहाज से इन्होंने हाथों के ऊपर ग्लव्स पहने ताकि कोई निशान ना, मतलब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं जी फिंगरप्रिंट ना आ सके। मतलब जो लोग हम समझते हैं कि पाकपतन के हैं या जाती हैं, वो इससे मतलब ऑर्गेनाइज नहीं हो। जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं वो इस तरह की एहतियात करते हैं। जी बिल्कुल। और इशफाक साहब ने यही बताया कि जी उन्होंने ग्लव्स अपना हाथों में पहने हुए थे, इसके अलावा चेहरों पे मास्क से ढांपे हुए थे, इस लिहाज से भी थोड़ी पुलिस मुश्किल आ रही थी, उसका चेहरा नहीं देख सके। और जब ये इन्होंने पहले नकदी कैश कुछ उनके पास फॉरेन करेंसी भी पड़ी हुई थी, वो छीनी है, जेवरात घर से छीने हैं। और जब ये घर से बाहर निकले हैं तो उनकी जो वाइफ हैं वो बच्चों को उसको ड्रॉप कर वापस आ रही हैं टोयोटा गाड़ी पे, और इन्होंने फिर उनको गन पॉइंट पे ले लिया और इन्होंने टोयोटा गाड़ी भी छीनी। ये बिलाजुला को तकरीबन 60-70 लाख की वारदात बन गई। ठीक है। और ये फिर हमारे लिए थोड़ा चैलेंज था। और फिर हमने उसी तरह से सारा उनको जो फॉलोअप है वो देखा कि ये कहाँ से एंटर हो सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। लोकल कैमरास की हमें काफ़ी हेल्प मिली है, ऐसी सेफ सिटी से भी हमने किया ट्राई। और फिर पहला जो बंदा पकड़ा है, फिर उससे आगे ये तमाम सफ़िया बीबी जब हमने पकड़ा तो उसने फिर अपना इंकशाफ किया कि ये वारदात हमने इस तरह से की है कि मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने अपने भाई ज़फ़र से आगे जो ज़फ़र नामी आदमी है जो साहब रिकॉर्ड याफ्ता है, इन्होंने फिर इस तरह मुकम्मल प्री प्लान वारदात की। ठीक है। अच्छा इकराम साहब, 70 लाख रुपए की डकैती होती है सर, उसमें जेवरात भी हैं, उसमें गाड़ी भी है, उसमें
कुछ गैर मुल्की करेंसी भी है। जी बिल्कुल। तो जो मुलजमान है वो कहते हैं कि जो जेवरात थे वो शायद आर्टिफिशियल थे और नकदी जो है वो उन्होंने दी है जो उसमें गैर मुल्की करेंसी भी थी। तो वो मुमकिन हुआ कि उनसे रिकवरी हो सके, क्योंकि होता ही है कि वारदात के बाद इस तरह के जो डाकू होते हैं तकसीम कर लेते हैं, हिस्से बना लेते हैं, तो कुछ रिकवर कर सकें, कुछ चीज़ें रिकवर कुछ हम रिकवरी इनसे की है, अभी कुछ रिकवरी इनकी बाकी भी है, क्योंकि वो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है अभी इनको उनके हैंड ओवर करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि इसमें हम मैक्सिमम रिकवरी करेंगे, बल्कि ना सिर्फ अपनी करेंगे बल्कि हम देखेंगे कि अगर इसी तर्ज की जो वारदात है बतौर घरेलू मुलाजमा पहले घर में रहना फिर रैकी करना, वो हम देखेंगे शायद कोई DHA में इस तरह की वारदात हम देखते हैं कि या पोश इलाकों में। ठीक है। उस हवाले से चेक करेंगे, इसके बाहर भी रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा इकराम साहब, जिस तरह का आपने जिक्र किया कि जो पोश इलाके हैं लाहौर के, जो महंगी रहायशें हैं, वहाँ पे हर घर में काम करने वाले मुलाजमा, काम करने वाले मुलाजिम, ड्राइवर्स, इस तरह के लोग सब वहाँ पे होते हैं। तो ये गैंग जो है, इस तरह का जो गैंग है, ये माजी में भी हमने देखा कि इसी तरह से वारदातें करते हैं और इनका एक पूरा ग्रोह होता है। तो इसके लिए लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए कि इतना ब्लाइंड फेथ, जिस तरह आपने कहा कि मालिक जो है, जो मुद्दई है मुकदमे के, वो कहते थे कि जी मुलाजमा को या मुलाजिम को ना पूछें, और यकीनन पुलिस को फिर एहतियात भी बरतनी पड़ती है। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या आप सोचते हैं कि जब घर में कोई मुलाजमा रखी जाती है और उसको इतना अरसा भी गुजर जाता है, 5 से 6 साल उसके पास वो काम कर रही है, मुद्दई जो है मुकदमे का, उस घर में, तो क्या करना चाहिए? सर इसके लिए बुनियादी तो हमारी अपने तमाम दोस्तों से, शहरियों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई घरेलू मुलाजिम भी रखते हैं तो थोड़ी बहुत उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। अगर वो बंदा इधर लाहौर में किसी इलाके में किराए पर रिहाइश पजीर है आपका मुलाजम, तो यकीनन उसकी कोई ना कोई इतिहादी बैकग्राउंड भी है, उसका नेटिव डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बहुत चेक कर लिया जाए, उसका फैमिली कोई ऐसा ज़िम्मेदार वाया से हम देख लें। लेकिन मोस्टली हम देखने में आता है कि वो जैसे इन्होंने कंपनीज वगैरह बनाई हैं, जो मुलाजमान को वो अपना उनका रब्ता करवा देते हैं, ये रख लेते हैं एक आध शनाख्ती कार्ड के ऊपर, बाद में मुश्किल होती है। आपके सामने है जैसा वो 2-3 साल से हमारा चल रहा है ये लाहौर में, कि हम देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान जब से आया, फिर हमने किराएदारी के हवाले से कि मैक्सिमम लोगों की अपना एंट्री थाना में हो, किराएदारों की भी एंट्री हो, और उसके अलावा जो आप घरेलू मुलाजमान हैं उनकी एंट्री हो। इस तरह हमारा जो निस्तर का जैसे फैक्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा हमारे पास काना में है, तो इसमें हम फैक्ट्री मुलाजमान की भी एंट्री करवाते हैं कि वो भी मतलब एटलीस्ट उन्हें इस बात का हो कि थाने में हमारी एंट्री है, कहीं ना कहीं भी हमें चेक किया जा सकता है, हमारा कोई फिंगरप्रिंट या थंब चेक हो सकता है। तो ये हमारी शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़रूर उनका थाने में भी अपना उसकी एंट्री करवाएं और ख़ुद भी थोड़ा बहुत इसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि इतना जो अपना बड़े लेवल पे शायद पुलिस के लिए मुश्किल हो जाए कि हम हर घर में जाकर और उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है इससे कि अपना पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है घरेलू मुलाजमों की, तो खुद से शहरी इसमें थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालें तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी है। अच्छा इकराम साहब, जो सफ़िया बीबी है जो इतला देती है अपने भाई को कि डकैती की जा सकती है, इस घर में पैसा भी है, जेवर भी है, गैर मुल्की करेंसी भी है, उसका एक ज़फ़र नामी शख्स के साथ ही नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, वो शादीशुदा भी है, तो क्या उसका शोहर इस वारदात में मुलविस नहीं है, ज़फ़र ही उसमें मुलविस होता है? नहीं, हमारी जो इब्तदाई मुलजिम ने इस बात का एतराफ़ किया, उसका भाई जो है वो बताता है कि मेरी बहन के ज़फ़र नामी शख्स के साथ, जिसको आपने गिरफ़्तार किया, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं और वो ख़ुद मुलजिम भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है, तो उसका शोहर जो है वो गिरफ़्तार नहीं है, वो मुलविस नहीं है। सफ़िया बीबी का जो शोहर है वो कल इधर थाने में हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उन्होंने उसको इंटरोगेट वैसे किया। पुलिस की अभी तक की जो इंटरोगेशन है उसमें ये है कि उसकी इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी इनके ताल्लुकात की बना क्योंकि जराइम पेशा लोग हैं, तो यकीनन ये गैर अखलाकी मामला में मुलव्वस हो सकते हैं, उसके बारे में तो हर इंसान के क्या उसमें राय दी जा सकती है, यकीनन इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन उसके शोहर की हद तक वैसे पुलिस चेक की है, ऐसा चीज़ का उसमें नज़र नहीं आया हमें। बाकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी हमारा शोबा इन्वेस्टिगेशन है, उनके पास ये हैंड ओवर है तमाम मुलाजमान, कुछ रिकवरी भी इनकी बाकी है, और अगर इनका कोई गैंग का अभी तो हमारे पास 8 मेंबरान हैं, जिनमें 6 मर्द हैं 2 औरतें हैं,
तो अगर कोई मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वाले भी चेक कर सकते यकीनन इसमें हाँ। कोई पेशरफ्त मजीद भी हो सकती है। ये थे जी थाना नश्तर कानूनी के SHO इकराम गुजर साहब, जिन्होंने हमें तफसील बताई कि कितनी मेहनत के बाद, कितनी कोशिश के बाद 8 रुकनी गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया और उसमें 2 ख़वातीन भी शामिल है। बदकिस्मती ये है कि जो ख़वातीन थी उसमें एक ख़ातून जो सफ़िया बीबी थी वो मुकदमा मुद्दई के घर पे मुलाजमा थी पिछले 5 से 6 साल से, और जो मालिक मकान था, घर का मालिक था और मुकदमे का मुद्दई था, वो शुबा भी नहीं करना चाहता था और पुलिस को भी मना करता था कि उनके मुलाजमीन से जो है इस तरह के सवालात ना किए जाएं। लेकिन होता क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी मुस्तनद होती है कि घरेलू मुलाजमा जो सफ़िया बीबी है वही डकैती की वारदात की वजह बनती है, वही अपने भाई को इतला देती है, वही तमाम गैंग को मुतहरक करवाती है और 70 लाख रुपए डकैती की वारदात जो है वो होती है। लेकिन पुलिस एक अच्छा काम करती है और कुछ घंटों के बाद ही घरेलू मुलाजमा को जब शामिल तफ्तीश किया जाता है, उसको इंटेरोगेट किया जाता है, तो बाकी जो मेम्बरान हैं इस गैंग के, डकैत गैंग के, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया और इस प्रोग्राम में एक सबक मिलता है कि आप घरेलू मुलाजिम ज़रूर रखें, लेकिन उनकी अच्छी तरह से तस्दीक करें। जिस तरह से इस प्रोग्राम में दिखाया कि एक घरेलू मुलाजमा ही 70 लाख रुपए की डकैती की वारदात में मुलव्वस पाई जाती है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।